Hello, dear students. How are you? I hope all are fine, safe, and healthy. Today, I am going to teach you chapter 1 Plants Increasing the Numbers. Do you know, students, what is the meaning of this chapter? Plants increasing the numbers. Means, how can we grow more and more plants? Okay, from one plant, how can we grow more and more plants? Okay, let's see. And if you have not subscribed my channel, so please subscribe my channel. Red color में लिखा हुआ है. Okay, and like the video. And keep your book and notebook, practice notebook and pencil with you to note down the important topics. Okay? Yes, let's begin. Yes, in this chapter you will know how to grow new plants, and there are different ways of growing plants. Okay, now see, Soma comes home from school at 3 p.m. She has lunch which consists of roti and vegetables, as you are having, like Soma. Say for example कि आप सोमा हैं. Okay, वो अपने स्कूल से घर कितने बजे आती है? 3 p.m. Okay, 3 o'clock during the noon time. She has lunch which consists of roti. तो उसके जो lunch में होता है generally even you are also having roti and vegetables. Okay, and now उसके जो lunch में क्या खाती है वो? What does she eat? Yes, roti and vegetables. And now it is 8 p.m. अब now अब क्या है? अब क्या time हो गया? What is the time now? Yes, it is 8 p.m. रात के 8 बज गए हैं. She is having dinner. और अब वो क्या खाने वाली है? What she is going to have with her family? Yes, dinner. अब वो dinner खाने वाली है. Like you, जैसे आप भी अपने पेरेंट्स के साथ डिनर खाते हैं. नाउ टॉक टू योर पार्टनर. आपको अपने जो ब्रदर सिस्टर है उनसे या फिर स्कूल के जो आपके कलीग्स हैं उनसे आप इसके बारे में डिस्कस कीजिएगा. एंड यू हैव टू नाउ टेल, you have to write the names of at least 6 food items. आपको कम से कम 6 food items के names बताने हैं that you see in the given picture. Okay, I am showing you the picture. Wait a minute. Yes, let's see carefully. Hmm. See, this is the picture of dinner. अभी आप डिनर में अभी पिक्चर में देख सकते हैं कि which are the there are different varieties of food items. So if you know the names of these food items, so kindly write in your practice notebook. Yes, as you know students कि हमारा जो लंच जो हमारा हमारी जो लाइफ है दैट डिपेंड्स ऑन नेचर. टोटली हमारी जो लाइफ है डिपेंड्स ऑन नेचर. टोटली हमारी लाइफ नेचर पर डिपेंड करती है. प्लांट्स आर अ मेजर पार्ट ऑफ नेचर. और जो प्लांट्स हैं दैट आर द मेजर पार्ट मीन्स सबसे बिग पार्ट. मेजर मीन्स बिग, बिग पार्ट ऑफ नेचर. नेचर का हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो नेचर है, हमारी जो मदर अर्थ है, उसका बिग पार्ट कौन सा है? प्लांट्स. And you know students, plants give us food, cereals, pulses, vegetables and fruits come from plants. Now we can frame a question here. यहाँ पर हम एक क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं. What does we get? What does, yes, we get from plants? Okay, so we get food, cereals, pulses, vegetables, fruits from plants. This is the answer. Very simple. If you will frame questions in between, you will learn very easily. Okay, the thoroughly you will understand the chapter. Okay beta. Sugar and oil too are obtained from plants. Do you know students? जो शुगर, चीनी और जो ऑयल होता है जो मम्मा यूज करती है कुक करने में फूड आइटम्स. ओके, जो तेल या ऑयल या घी जो भी यूज करते हैं दैट ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. और शुगर, चीनी भी हमको प्लांट से मिलती है. ऑब्टेन्ड मीन्स गेट. ओके, वी गॉट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम plants. And plants provide us with wood, fiber, rubber,
gum, tea and coffee. Apart from cereals, pulses, vegetables and fruits, we get, हमें और क्या मिलता है? wood, fiber, gum, rubber, tea and coffee. ये सब भी हमको किससे मिलता है? इससे, प्लांट से. Clear everyone? Yes. Now write down in your practice notebook so that you could learn for a long time. Okay? With spellings. Plants supply us with life-giving oxygen. Do you know, students? Most important thing, एक तो हमें खाने को खाना मिला, ओके, टिम्बर मिला, फूड मिला, और रबर, गम, टी, कॉफी सब कुछ हमें किससे मिला? प्लांट से मिला. ओके. नाउ नेक्स्ट इज, ये हमें क्या देते हैं? लाइफ गिविंग ऑक्सीजन मीन्स प्योर एयर. द एयर दैट इज प्योर और फ्रेश वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. ऑक्सीजन, यू नो स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या एक्सेल करते हैं? बाहर क्या चीज ब्रीथ आउट करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं. ओके, वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और एक्सेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन. एक्सेल मींस बाहर निकालना, मींस ब्रीथ आउट, और इनहेल मींस अंदर लेना, ब्रीथ इन. ब्रीथ इन क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड मीन, और जो हम हैं, पीपल जो होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, वो हम क्या इनहेल करते हैं? दैट इज ऑक्सीजन. हम किस फ्रेश एयर अंदर लेते हैं? दैट इज ऑक्सीजन. दैट इज गिवन बाय, कौन देता है हमें? प्लांट्स. एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी ब्रीथ आउट, जो हम छोड़ते हैं हमारी, जो हमारे मुंह से और जो हमारे माउथ से और जो नोज से बाहर आती है, वो सांस जो हम लेते हैं, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, दैट इज, जो हम छोड़ते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, एंड यू नो स्टूडेंट्स, दैट इज अमेजिंग थिंग. लिसन वेरी केयरफुली. जो प्लांट्स हैं, दोज प्लांट्स क्या करते हैं? अपने अंदर क्या लेते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर इट? एंड प्लांट्स हेल्प टू रिड्यूस सॉइल इरोजन. और प्लांट्स किसको और क्या हेल्प करते हैं? रिड्यूस सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन मीन्स जो हमारी जो सॉइल है, हमारी जो मिट्टी है, जो टॉप लेयर है सॉइल की, वो जब फ्लड्स आती है या फिर हैवी रेनफॉल होता है, तो वो उसके साथ वो वॉश्ड अवे हो जाती है. वो ऊपर की टॉप लेयर, आपने देखा होगा मिट्टी बहुत बारिश के पानी के साथ, और जब हैवी रेनफॉल होता है तो उसके साथ में वो अपने साथ बहा लेके चली जाती है. और प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स इस चीज को स्टॉप करने में हेल्प करते हैं. ओके, रिड्यूस सॉइल इरोजन. यू नो स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स हैं वो एक किस तरह के, जो रूट्स है प्लांट्स की, वो कैसा रोल प्ले करती हैं? वो क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं? वो हमारे क्या है, एक हमारे जो फिंगर्स है ना बेटा, हमारे जो पाम है, वो हमारे पाम की जैसे, जैसे पाम में फिंगर्स हैं, तो फिंगर्स से फॉर एग्जांपल आप इसको इमेजिन करो, ये रूट्स हैं प्लांट्स की. तो हम क्या यूज करते हैं किसी चीज को होल्ड करने के लिए? अपने फिंगर्स यूज करते हैं. एवरीबडी नोज दिस थिंग. आपने ग्लास पकड़ना है तो आप फिंगर्स यूज करेंगे उसको होल्ड करने के लिए. ओके, पूरा पाम यूज करते हैं. और अगर आपने कुछ भी चीज होल्ड करनी है तो आप अपना क्या यूज करते हैं? फिंगर्स विद पाम. ओके, तो सेम एज जो रूट्स हैं ट्री की, वो सॉइल को अपने साथ पाम के जैसे होल्ड करके रखती हैं. तो इससे क्या है, वो किसको प्रोटेक्ट करती हैं? वॉश्ड अवे, सॉइल इरोजन से प्रोटेक्शन देती हैं. ओके, होल्ड करके रखती हैं. I think it is very much clear, everyone. Plant supply us with life-giving oxygen. हमें क्या देते हैं plants? Life-giving oxygen. And you know, plants help to reduce soil erosion, और soil erosion को भी क्या करती है? वो रोकती है. Life on earth cannot exist without plant. जो लाइफ होती है वो बिना प्लांट्स के एग्जिस्ट नहीं कर सकते. वी कांट इमेजिन मीन्स, हम अपनी लाइफ को बिना प्लांट्स के, बिना ट्रीज के इमेजिन नहीं कर सकते हैं. बिकॉज वी गेट ऑल द फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स, ऑल द थिंग्स. ओके, एंड प्लांट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर, और बैलेंस भी बनाते हैं नेचर में. ओके, plants help to bring
रेन, रेनफॉल, रेन को भी वो रेनफॉल करने में भी हेल्प करते हैं। ओके, तो इसलिए वी मस्ट ग्रो मोर एंड मोर plants. Our life is totally depends on plants. More plants would mean a continuous supply of plant products to meet our needs. इसका मीनिंग क्या है? जितने भी प्लांट्स होते हैं, अगर हम प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो उससे कंटिन्यूस सप्लाई रहेगी। किस चीज की? जो चीजें हमारी रिक्वायरमेंट्स है ह्यूमन बींग्स की, वो फुलफिल होती रहेंगी, अकम्प्लिश होती रहेंगी, जस्ट बिकॉज किससे? ऑफ प्लांट्स। सो वी मस्ट ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। क्लियर एवरीवन? आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम दूसरे टॉपिक्स पर चलते हैं। ओके, नाउ न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। अब हम ये समझेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है वो, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। ओके, सो न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। अब नए नए प्लांट्स हम सीड से कैसे ग्रो करें? ओके, हम एक प्लांट से, एक ट्री से हम कैसे बहुत सारे ट्रीज ग्रो करें? नाउ लिसन केयरफुली एवरीवन। Why does a plant produce so many seeds? अब एक प्लांट बहुत सारे सीड्स कैसे प्रोड्यूस करता है? थिंक, दे डू सो। कैसे करते हैं वो? Because most new plants grow from seeds. ज्यादातर जितने भी न्यू प्लांट्स होते हैं वो सीड से ही ग्रो होते हैं। Yet all seeds do not grow into new plants. और जितने भी, लेकिन हाँ, हालांकि however जितने भी सीड्स होते हैं उनसे सबसे प्लांट्स नहीं ग्रो करते हैं। some seeds are fully grown when they are separated from the parent plants. जब सीड्स अपने पेरेंट प्लांट से अलग होते हैं, डिटैच्ड होते हैं, तो उस टाइम क्या होता है? some seeds are destroyed by strong winds or heavy rainfall or are eaten by insects or birds. कभी कभी क्या होता है? sometimes it happens कि से फॉर एग्जांपल स्टॉर्म आ गया। अब स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो स्टार्ट हो गई होनी, ओके, तेज हवाएं चल रही हैं। अब उससे क्या होगा? फ्रूट टूट के नीचे गिर जाएगा और सीड्स बिखर जाएंगे, और कुछ तो क्या है, उनको इंसेक्ट्स खा जाएंगे। और कुछ क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड और हैवी रेन से वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे? मूव हो जाएंगे। ओके, मूव फ्रॉम far places. Some do not get the right soil, और कुछ प्लांट, कुछ सीड्स को राइट सॉइल नहीं मिलेगी, एनफ एयर नहीं मिलेगी, एंड वाटर नहीं मिलेगा। ओके, एज यू नो वेरी वेल कि हमें सीड्स को गुड प्लांट्स में ग्रो करने के लिए हमें प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट चाहिए, वार्मथ चाहिए, राइट सॉइल चाहिए, और वाटर चाहिए, और मैन्योर चाहिए। ओके, ये चीजें रिक्वायरमेंट होती है किसकी? टू ग्रो अ हेल्दी प्लांट। ओके, seeds survive and get favorable condition to get growth. ओके, जो न्यू प्लांट्स हैं, तो सीड्स, जो सीड्स होते हैं, सीड से जिससे कि हमने न्यू प्लांट ग्रो होना है, तो वो कहाँ से आता है? सीड्स दैट सर्वाइव गेट फेवरेबल। अगर वो फ्रूट्स, प्लांट से आया, प्लांट में जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स से क्या आया? सीड्स आए। अब सीड्स सर्वाइव एंड गेट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। अगर हमें उन्हें अच्छी ग्रोथ देनी है, अच्छे से उगाना है, ग्रो करना है, हेल्दी प्लांट बनाना है, तो हमें सीड्स को क्या करना है? पूरी फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करानी है उसकी प्रॉपरली ग्रोथ के लिए। ओके, बस यहाँ पे छोड़ दीजिए। Seeds that survive and get favorable conditions for their growth grow into new plants. जिन सीड्स को अच्छी और फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है, तो वो प्रॉपरली क्या हो जाते हैं? वो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और उन न्यू प्लांट्स में वो ग्रो करते हैं। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू सी द पार्ट्स ऑफ अ सीड। आप इसको चाहे तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ओके, सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक wheat, maize and rice have one seed.
एज यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, जो व्हीट है, मेज, राइस, ये वन सीड है, वन सीड। इनका जो एक इंडिविजुअल होता है ना, एक सीड, सो एक लीफ में बहुत सारे सीड्स होते हैं एंड कॉल्ड मोनोकोट सीड्स, और इनको क्या कहा जाता है? मोनोकोट सीड्स कहा जाता है। ओके, जैसे एक लीफ में बहुत सारे सीड्स, लाइक कॉर्न, भुट्टा, देखते हैं, जानते हो ना भुट्टा? तो भुट्टे में क्या होता है, एक ही लीफ होती है उसकी, और एक लीफ में बहुत सारे जो दाने होते हैं ना उसके, सीड्स, वो बहुत सारे दाने होते हैं एक ही लीफ के अंदर। सो दीज टाइप ऑफ सीड्स आर कॉल्ड मोनोकॉट सीड्स। एज राइस, राइस भी ऐसे ही सेम एज व्हीट, व्हीट में भी एक ही लीफ होती है, सिंगल लीफ, उसके अंदर बहुत सारे दाने होते हैं, ओके, सीड्स होते हैं। देयर आर मेनी सीड्स ऑन वन लीफ, दीज आर कॉल्ड मोनोकॉट सीड्स, रिमेंबर दिस थिंग, ओके, मोनोकॉट सीड्स। So अब question, if this question comes in exam, so how will you write? Okay, what are monocot seeds? So seeds. So what is the answer? See, some plants like wheat, maize, and rice have one seed leaf and are called monocot seeds. So simple. Okay, write down in practice notebook. Okay, seed germination. अब हम सीखेंगे कि what is seed germination. What is अभी क्वेश्चन हम इससे बना सकते हैं, इसके टू क्वेश्चन बन जाएंगे लाइक दिस। वन इज डिफाइन सीड जर्मिनेशन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जर्मिनेशन। ओके, सो द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जब कोई सीड एक छोटे से प्लांट में ग्रो हो जाता है, दैट इज कॉल्ड, एक सीडलिंग बन जाता है, तो स्टार्ट हो जाता है उसमें से ग्रो होना, so that is called seed germination. This process is called germination. Let us do an activity to find out the conditions necessary for the germination of a seed. कि हमें germination के लिए कौन कौन से favorable conditions चाहिए। ओके, तो a seed and its parts, सबसे पहले हम एक seed के बारे में समझेंगे और इसके part के बारे में समझेंगे। so like a gram, आपने ये कुछ some you have to take some gram seeds, चने होते हैं ना, काले चने, ब्लैक ग्राम्स, ओके, तो सोक सम ग्राम सीड्स इनटू वाटर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए हमें क्या करना है, वाटर में क्या डाल के रखने हैं, काले चने रख के, ब्लैक ग्राम डाल के रखने हैं, and soak some gram seeds into water for few days. Take one of their seeds, or take one of these seeds, you will notice that it has an outer covering. ओके, अब आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि एक आउटर कवरिंग आ जाती है, दिस इज कॉल्ड आउटर कवरिंग। हम ओके, तो एक आउटर कवरिंग है ये जो इसके बाहर का है, और तो दैट इज सीड कोट, उसको क्या कहा जाता है, सीड कोट। तो सी ग्राम सीड हैज टू सीड्स लीव्स, तो हमेशा आप देखेंगे कोई से भी जैसे आपके दाल है, कोई भी लाइक मूंग की दाल है, ये साबुत मूंग होते हैं ना वो, ओके, और ऐसे ब्लैक ग्राम है या फिर व्हाइट ग्राम है, हाँ, सफेद चने, काबुली चने, और आपके ये काले चने, सो दैट आर हैविंग शूट्स, ये आपके टू सीड लीव्स है, 1 and 2, ओके, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, और यहाँ से ये छोटे छोटे से जो टॉपर पार्ट होता है, ये जो बेबी प्लांट ग्रो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइनी शूट, और जो नीचे की जो रूट होती है, दैट इज कॉल्ड टाइनी रूट। जो अपर पार्ट है दैट इज टाइनी शूट, और जो लोअर पार्ट है दैट इज टाइनी रूट। ओके, अभी छोटे छोटे से टाइनी रूट्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, और ऊपर से अपर पार्ट से टाइनी शूट से लीव्स निकलने स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, एंड रिमूव द सीड कोट, अब आप क्या करेंगे, सीड कोट को रिमूव कर देंगे, यू विल सी टू सीड लीव्स और कॉटिलेडन, क्या निकलता है बेटा उसमें से, सी these two parts are called cotyledon, ये दो पार्ट आपको नजर आए, these are called cotyledons, separate them and you will find a baby plant inside. This baby plant has a tiny shoot and a tiny root. अगर आप इन दोनों पार्ट को आप अलग करके देखेंगे, इसको कार्टिलेडन को, तो इसमें आपको दो पार्ट नजर आएंगे,
एक tiny shoot upper part and tiny root the lower part. Clear everyone? Food for the baby plant is stored in the seed leaves. अब इसके लिए food कहाँ से आता है? Food for the baby plant is stored in the seed leaves. जो seed leaves होती हैं उसमें baby plant के लिए food store होता है. As long as the baby plant does not grow green leaves, it depends on the food stored in the seeds. Okay, जैसे ही baby plants as long as the baby plants does not grow green leaves, जब तक के baby plants में से green leaves नहीं आती हैं, okay, तो it depends on the food stored in the seed. तो ये किस में से store हो जाता है? इसमें store हो जाता है ये it depends on the food store in the seed. तो किसमें इसका खाना किसमें store हो जाता है? Food stored in the seed. Okay, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको प्रैक्टिस नोटबुक में, so that you for the better understanding. Yes, seeds of plants like gram, peas and beans have two seeds leaves. तो आपको क्या याद रखना है? तो जितने भी प्लांट्स हैं जैसे कि ग्राम्स हैं, पीस हैं, मटर, बीन्स हैं, हाँ जैसे किडनी बीन्स हैं, राजमा, so have two seed leaves. तो इनके two seed leaves होती हैं and are called dicot seeds. इनको क्या कहा जाता है? Dicot seeds. Okay? So सबको ये ध्यान रखना है और so that you could remember. So इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए प्रैक्टिस नोटबुक पे. Okay? And now activity 2. Take 4 plates and नंबर देम 1 2 3 and 4. आपने 4 प्लेट्स लेनी है, 4 प्लेट्स लेनी है, उसमें नंबर लगा दीजिए 1 2 3 4 एंड टेक सम ड्राई ग्राम सीड्स. और आपने कुछ सूखे हुए चने ले लेने हैं और पुट सम सीड्स इन प्लेट 1 एंड कीप द प्लेट ऑन अ विंडो सिल. जो विंडो सिल हो तो खिड़की के पास एक छोटी सी एक पट्टी सी बनी होती है ना, सो दैट इज कॉल्ड विंडो सिल. Where it can get air and sunlight, वहां पर आप इसको रख दीजिए उस विंडो सिल पर. ओके, उस प्लेट को. एंड पुट सम सीड्स इनटू अ प्लेट 2. और कुछ सीड्स आप प्लेट 2 में भी डाल के रखिए. कुछ तो हमने किस में डाले थे? प्लेट 1 में डाले थे. ओके, और अब प्लेट 2 को हमने कहाँ रखना है? प्लेट इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर. एक ऐसा बीकर लेना है जिसमें वाटर है और उसके अंदर हमने उस प्लेट को रख देना है जिसमें वाटर भी है. ओके, एंड नाउ कीप द बीकर ऑन द विंडो सिल. और आपने उस बीकर को कहाँ रख देना है? विंडो सिल पर रख देना है. एंड पुट सम सीड्स सोक्ड ऑन मॉइस्ट कॉटन. और कुछ सीड्स को आपने मॉइस्ट कॉटन में प्लेट 3 में रख देना है. मॉइस्ट यानी जो गीली सी कॉटन होती है ना, थोड़ी मॉइस्चर हुई. ओके, वहां रख देना है. एंड कीप द प्लेट इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर. अब उस प्लेट को आपने फ्रिज के अंदर रख देना है, रेफ्रिजरेटर में. एंड पुट सम सीड्स सोक्ड ऑन मॉइस्ट कॉटन इन प्लेट 4. कीप द प्लेट ऑन द विंडो सिल. अब इस प्लेट को आपने कहाँ रख देना है? अब कुछ सीड्स हमने प्लेट 4 में डालने हैं और उसको भी हमने विंडो सिल पर रख देना है. और कहाँ रखना है? कॉटन ऑन प्लेट 4 मॉइस्ट ऑल द टाइम. और हर टाइम उसको मॉइस्ट रखना है, यानी कि उसमें नमी रहनी चाहिए उस कॉटन के अंदर. जैसे गीले कपड़े होते हैं ना, जब मम्मा कपड़े धोती है, तो ऐसे ही मॉइस्ट उसको रखना है कॉटन को. ओके, और फिर आप देखिएगा कि किस तरीके से कौन से वाले सीड्स में जर्मिनेशन हो रहा है. ओके, द कंडीशन नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड. ओके, तो अब नाउ नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपने. ओके, यस, you will notice that only the seeds in plate 4 have germinated. आप देखेंगे कि जो हमारी प्लेट नंबर 4 है उसमें से सीड्स जो है उसका जर्मिनेशन हो रहा है सीड्स में से. ओके, दिस शोज दैट एयर. तो अब हमें इससे क्या नोटिस कर रहे हैं हम लोग? क्या नोटिस हो रहा है? यस, कि दिस शोज द एयर, मॉइस्चर, वाटर. मॉइस्चर मीन्स वाटर एंड वार्मथ मीन्स सनलाइट. वार्मथ सीड को कहाँ से मिल रही है? सनलाइट से मिल रही है. ओके, सूरज की रोशनी से. तो आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन. तो जो जिस सीड को भी ये सब प्रॉपरली मिलेगा, प्रॉपर वाटर, प्रॉपर मॉइस्चर, प्रॉपर वार्मथ, सनलाइट, ये सब कंडीशंस उसको मिलेंगी, प्रॉपर एयर मिलेगी उसको सीड को, तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन.
Grow means germination. Clear? Now this is because a germinating seed needs air to breathe. ये इसलिए होता है कि जो सीड में से जर्मिनेशन हो रहा है या हुआ है, नीड्स एयर टू ब्रीथ, उसको भी तो एयर चाहिए ना सांस लेने के लिए। एंड वाटर आल्सो मेक्स द सीड कोट सॉफ्ट, और जो वाटर है, जो जो ब्लैक ग्राम है, उन्होंने अब्सॉर्ब कर लिया है, तो वो जो ऊपर का जो आउट कवरिंग सीड होता है ना, उसका आउट सीड कवरिंग जो होती है, जिसको कोट बोलते हैं ना, तो उसको क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। आपने देखा होगा चने, ब्लैक ग्राम, जब आप उसको टच करते हो तो बिफोर, जब वाटर में डालने से पहले आप उसको देखो तो बहुत हार्ड होते हैं, ड्राई ब्लैक ग्राम। ओके, और जब आप उसको उसमें डाल के रखते हो वाटर के अंदर, तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, उनका आउटर कवरिंग क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। दिस हेल्प द बेबी प्लांट टू ब्रेक द सीड, ओपन एंड कम आउट। और इससे क्या होता है, बेबी प्लांट जैसे जो, दिस हेल्प द बेबी प्लांट टू ब्रेक द सीड, और वो जो अंदर जो बेबी प्लांट छुपा हुआ होता है, उसको सीड को ओपन करने में हेल्प करता है। क्या चीज, वाटर, एंड कम आउट, और बाहर निकलने में। ओके, उससे वो बाहर निकल आता है बेबी प्लांट। ओके, जैसे ही उसकी सीड कोट सॉफ्ट होता है वाटर की वजह से, और वैसे ही वो जो सीडलिंग छोटा सा बेबी प्लांट है वो बाहर आ जाता है, उसको किसको, आउट, उस सीड कोट को ब्रेक करके। warmth is needed for the cell of the seed to become active, और क्या चाहिए, warmth चाहिए, मीन्स गर्मी चाहिए, is needed for the cell of the seed to become active, और एक्टिव बनने के लिए सीड को warmth चाहिए। ओके, गर्मी चाहिए। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन की बहुत सारे स्टेजेस हैं। You can see here through the activity 3. Soak some gram seeds in water. You will notice, आपने जैसे ही कुछ ग्राम्स को वाटर के अंदर सोक किया, एंड जैसे ही उनको डुबोया, you will notice that soaked seed is swollen, और वो जो soaked seeds है, जो ड्राई सीड है, वो क्या हो जाते हैं, फूलना स्टार्ट हो जाते हैं, swollen हो जाते हैं, बिकॉज इट हैज absorbed water. Why? क्योंकि इन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है अपने अंदर। इट्स कोट हैज आल्सो बिकम सॉफ्ट, इसकी जो आउटर कवरिंग है, दिस इज कॉल्ड कोट। तो ये क्या बन गया है, इसका कोट, सीड कोट सॉफ्ट हो गया है। नाउ पुट दिस सोक्ड सीड ऑन अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ टाइड ओवर द माउथ ऑफ अ जार। अब उसमें से ये देखिए, ऐसे इस तरीके से माउथ जार में से इसमें इसको टाई अप कर देंगे, and tiny roots will come out of the soft moist seed coat. अब जो वो सीड कोट का जो सॉफ्ट हो गया है, उसका आफ्टर कवरिंग, उसका जो कोट है वो सॉफ्ट हो गया है, तो उससे क्या होगा, उससे सीडलिंग छोटा छोटा प्लांट बाहर निकलने लग जाएगा। ऊपर से रूट, टॉप पार्ट क्या है, रूट शूट निकलेगा, और नीचे लोअर पार्ट क्या है, वो रूट बन जाएगा। ओके, लाइक दिस, जैसे आप देख सकते हैं, ये क्या है, रूट, और दिस इज कॉल्ड शूट। ओके, अपर पार्ट। लेटर शूट टू विल कम आउट, सबसे पहले रूट बाहर आती है, उसके बाद फिर शूट बाहर आता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया है? यस। द रूट ग्रोथ डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स ग्रेविटी एंड द शूट ग्रोज अपवर्ड्स टुवर्ड्स सनलाइट। जो रूट ग्रोज होती है डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, टुवर्ड्स ग्रेविटी। ओके, किसकी तरफ, ग्रेविटी की तरफ से। हमारी जो अर्थ है उसके अंदर क्या चीज है, कौन सी एनर्जी है, यस, ग्रेविटेशन। ओके, ग्रेविटेशनल एनर्जी है, सो दैट पुल डाउन, किस चीज को, रूट को डाउनवर्ड्स की तरफ खींचती है, एंड द शूट ग्रोज अपवर्ड्स टुवर्ड्स द सनलाइट, और जो शूट ऊपर का हिस्सा है वो सनलाइट की वजह से ऊपर की तरफ वो जाता है, ग्रो करता है। दिस सीडलिंग ग्रोज एंड बिकम अ प्लांट, और यही सीडलिंग क्या बन जाता है, एक धीरे धीरे बड़ा प्लांट बन जाता है। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, अब हम क्या सीखेंगे, अब अभी हमने क्या सीखा था, व्हाट डिड वी लर्न, वी लर्नड अबाउट हाउ डिड सीड्स ग्रो इनटू plants, new plants. Okay, अब हम सीखेंगे what we learn now, dispersal of seeds. उसको सीड्स का डिस्पर्सल कैसे होता है, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह पर ग्रो हो जाता है, और किस तरीके से वो डिस्पर्स होता है, कैसे फैलता है। What are the reason behind? Now listen carefully. Plants are fixed to the ground. Plants कहाँ fix होते हैं, as you know very well, in the ground. Okay,
to the ground and cannot move from one place to another, और वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कभी भी मूव नहीं करते हैं प्लांट्स. If all baby plants grow near a parent plant, जब बेबी प्लांट एक पेरेंट प्लांट्स के नियर पास में ही ग्रो करता है, not all would survive, और वो एकदम से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. क्यों नहीं सर्वाइव? सर्वाइव मीन्स लिव, स्टे अलाइव, जिंदा रहना. तो वो सारे के सारे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. Why not? Now listen carefully. Because enough sunlight, food, water, space to grow. उनको प्रॉपरली क्या होता है, अगर वो पेरेंट प्लांट के पास ग्रो करेंगे तो ना तो उनको एनफ सनलाइट मिल पाएगी, ना ही उनको प्रॉपरली फूड मिल पाएगा, ना ही वाटर, और ना ही उनको स्पेस. ओके, क्योंकि सारा स्पेस तो उनके पेरेंट प्लांट ने कवर किया हुआ है. तो इसलिए कुछ सीड्स ग्रो नहीं कर पाते हैं. जिन सीड्स को स्पेस मिल जाती है वो ग्रो कर जाते हैं, और जिनको नहीं मिलती है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं. ओके, hence there are some agents in nature to scatter these seeds. अब कुछ एजेंट्स भी होते हैं नेचर के जो सीड्स को स्कैटर करने में हेल्प करते हैं, इधर उधर बखेरने में, इधर उधर पहुंचाने में, वन प्लेस टू अनदर प्लेस में पहुंचाने में कौन हेल्प करता है? एजेंट्स. एजेंट्स इन नेचर. Okay, some from their parent plant. This process is called dispersal. Now, what is dispersal? There are some agents in nature to scatter these seeds. These these agents carry the seeds of fruits away. Okay, and from their parent plant, अपने parent plant से दूर ले जाते हैं वो agents. किसको ले जाते हैं? उसके fruits को, और कभी कभी seeds को ले जाते हैं. और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सल. इसी प्रोसेस को डिस्पर्सल कहा जाता है. क्लियर एवरीवन? अब हम समझेंगे कि अभी तो आपने क्या समझा था. व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स? नाउ एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल. अब एजेंट्स कौन से हैं डिस्पर्सल के? सीड्स को डिस्पर्स करने में कौन कौन से एजेंट्स हेल्पफुल है? नाउ नोट डाउन द नेम. डिस्पर्सल इज कैरिड आउट बाय द विंड. नंबर वन ये हो गया wind, water, animal and explosion. So this is called, these are the agents. Okay, all these are agents. Wind, water, animals, explosion or fruits, these are agents. The special structure of certain seeds and fruits help these seeds in dispersal. इसमें हेल्प करते हैं ये, इनकी जो स्पेशल क्वालिटीज है, स्पेशल स्ट्रक्चर है ऑफ सर्टेन सीड्स का, कुछ सीड्स का, तो ये उनको डिस्पर्स होने में हेल्प करता है. एज हिप्टेज सीड. कौन सा सीड है ये? हिप्टेज सीड. ये अपनी विंग की वजह से वन प्लेस से लेके अनदर प्लेस पर ये मूव करता हुआ एयर से, एयर जो है विंड इनको वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाती है और वहां पर जाकर ये ग्रो कर जाते हैं. ओके, अनलाइक सीड्स ऑफ कॉटन. कॉटन के ये सीड्स हैं. एंड मैडर एंड हिप्टेज. इसके जो हेयर है, हेयर जो है एयर में एक, क्योंकि लाइट वेट के होते हैं, मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस और वहां जाकर ये ग्रो कर जाते हैं. एंड दीज आर द टफ्ट ऑफ हेयर. ओके, एंड दीज आर विंग्स. विंग्स ऑफ अ हिप्टेज सीड. और ये वहां जाकर दूर जाकर के उसका प्लांट ग्रो हो जाता है. ओके, तो दिस प्रोसेस इज सीड्स डिस्पर्स्ड बाय विंड्स. जो रिमेंबर दिस थिंग स्टूडेंट, जब भी लाइट वेट के जो सीड्स होते हैं वो विंड से वन प्लेस से लेके अनदर प्लेस पर जाकर ग्रो हो जाते हैं. इज इट क्लियर? वेरी नाइस. नाउ लोटस. आपने लोटस का फ्रूट देखा है, तो पोरस पार्ट, दिस इज कॉल्ड पोरस पार्ट, एंड फाइब्रस कोट, एंड दिस इज कोकोनट शेल. ओके, so these type of seeds dispersed by water. अब वाटर से ये कैसे इधर उधर डिस्पर्स होते हैं? लोटस, जो लोटस के जो सीड्स हैं, ये पोरस पार्ट है, तो वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पर चले जाते हैं. किससे? बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर. जो वाटर का जो फ्लो है वो उनको मूव करने में हेल्प करता है. वो वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव कर जाते हैं और वहां जाकर ग्रो हो जाते हैं. एंड फाइब्रस कोट, एंड दिस इज कॉल्ड फाइब्रस कोट. जो आपने देखा है ना नारियल, कोकोनट, उस कोकोनट शेल के आउटर कवरिंग जो होती है वो किसकी होती है? वो फाइब्रस कोट होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ राइट दिस मीनिंग. डिस्पर्सल.
the process of scattering the of seeds through agent of nature. This process is called dispersal. Note down कर लीजिए. The process of scattering of seeds through agents of nature. Clear everyone? Very nice. Now let's move to the next one. Now next process कौन सा है dispersal का? Seed dispersed by animals. अब animals कैसे? अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? एयर के बारे में कि एयर से वो कैसे डिस्पर्स होते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट एनिमल्स कि एनिमल्स हाउ डिड एनिमल्स हेल्प टू a seed to dispersed. Okay, so now see यहाँ पे ये hook type of seeds you can see and spines and tiger nail seeds. इनको tiger nail seeds भी कहा जाता है. spear grass इनको spear grass कहा जाता है. Okay, these are stiff hair. So ये कि कौन किसको कौन डिस्पर्स करता है? एनिमल्स. ये जो हुक टाइप होते हैं और ये जो स्पाइंस होते हैं, जो स्टिफ हेयर होते हैं, ये हैंग हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं. किससे? एनिमल से. जो एनिमल्स के जो हेयर होते हैं ना ज्यादा लॉन्ग हेयर, तो उनसे स्टिक हो जाते हैं. और जब वो जैसे ही अपनी नेक को कोई भी एनिमल मूव करता है, इधर हिलाता है और वो वहीं गिर जाते हैं सीड्स दूसरे प्लेस पर, और वो दूर जगह पर जाकर ग्रो हो जाता है. उस सीड्स में से न्यू प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं. ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है डिस्पर्सल का? सी, दैट इज सीड डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन. और कुछ सीड्स जो है एक्सप्लोजन से डिस्पर्स होते हैं. लाइक पेयर, अ पेयर पॉड बर्स्ट ओपन. जब कोई मटर की जो फली होती है, जो मटर होती है, तो जब वो फूलने लगती है और उसका जो पॉड है वो बस्ट हो जाता है. ये बस्ट हो गया है और उसके सीड से इधर उधर डिस्पर्स हो जाएंगे और एयर से मूव हो जाएंगे. एक्सप्लोजन, तो जैसे बस्ट यानी कि एक एक्सप्लोजन हुआ और वो सीड्स वहां गिर गए. ओके, so this is the another process of seeds dispersal. Clear everyone? Now animals. Human beings and animals eat fruits like cherries and mangoes and throw away their seeds. Humans क्या आते हैं? Humans और animals दोनों ही fruits खाते हैं, जैसे कि cherry, for example cherries and mangoes, और throw away their seeds, और seeds को इधर उधर फेंक देते हैं. They throw the seeds here and there, and some seeds have hooks of spines, और कुछ seeds in the modern time now these days we are having यहाँ पर कुछ people ऐसे हैं जो इन seeds को grow करते हैं. Some seeds have hooks or spines. They get sucked. क्या करते हैं? They get sucked to the hairy skin of animals and are carried away. स्टक में चिपक जाते हैं, हैंग हो जाते हैं. इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो किससे हैंग हो जाते हैं? उनकी एनिमल्स की हेयर वाली जो स्किन होती है उससे वो स्टिक हो जाते हैं. और वो जब एनिमल दूर चला जाता है और वो अपनी नेक को या किसी भी बॉडी पार्ट को हिलाता है, जोर से शेक करता है, तो वो सारे सीड्स वहां गिर जाते हैं. इज इट क्लियर एवरीवन? सो दिस इज द अनदर वे ऑफ डिस्पर्सल ऑफ अ सीड. Birds swallow some seeds which come out unchanged in their droppings. Yes, और कुछ birds ऐसी होती हैं जो पूरे बीजों को ही some seeds को swallow कर लेती हैं अपने अंदर, और बाद में जब वो बिना चेंज करे हुए ही उसको ड्रॉप कर देती हैं. उससे क्या होता है? That is the another way of dispersal. Okay, is it clear everyone? Yes. Now explosion. Explosion, some fruits like peas in a pod burst open or explode when dry. This force of explosion helps the to scatter the seeds. जब सीड किसी पॉड में से मटर में से गिरता है और वो सूख जाता है, तो लाइट वेट में हो जाता है और फिर वो एयर उनको मूव करके इधर उधर ले जाती है वन प्लेस टू अनदर, और डिस्पर्स हो जाते हैं सीड्स और किसमें? प्लांट में ग्रो हो जाते हैं. ओके, now you can see in the figure any part of a potato which has an eye can grow into a new plant. Okay,